गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Shankar sir, I will continue. I'm there. Okay, thank you. Sorry, I said that I will not be there probably, but now I have some time, so I will introduce Mangalam sir. Yesterday you had lecture by Shankar sir. You all said that it was interesting. I was quite worried whether such type of topics in such a diverse crowd where we have 9 standard student, we have 12th standard student, we have second year students, we have final year student. It's very difficult, but then probably the intentions of this particular lectures are well understood by our teachers. So I will not waste much time in today's such type of discussion. This is being fifth lecture. I want to introduce Mangalam sir, who happens to be from the Bihar Patna, and he is one of the very close friend of mine, plus student, plus well wisher, and that is why he is a very close associate in this online teaching program. Shankar sir and Mangalam sir, Priyanka madam, Vaishali madam, Santosh Tekle, Aarti madam. This is a close team. There are some more members, but this is a close team, and that is why we close team people are involved in this online teaching for competitive exams. Sir, today I will be taking again that CSAT, mental ability, mathematical ability. He will be going into very basic things which belongs to 6, 7 standard. But again, he will try to connect it to the how competitive exams has got this particular essential element of even 6th, 7th mathematical ability. So, sir is well versed with these things because they have very recently successfully completed one interesting thing, that is online teachers training. And that 10-hour session was so wonderful that everybody appreciated Shankar sir's and Mangalam sir efforts like anything. This is being our last session. Having 18 people means that at least 50% will pay us fees, and then we will go ahead with our course nicely. Now, we'll not now waste much time into this. Now we go ahead with the Mangalam sir. Mangalam sir, Shankar sir will be present there for your assistance. तो आप दोनों मिलके ये क्लास कंडक्ट करिए. अगर आप कंफर्टेबल हो तो शंकर सर को कुछ बिजी शेड्यूल है तो ही कैन लीव आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, पर वो दोनों आप दोनों म्यूचुअली डिसाइड करिए. सो प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू. ओके सर, थैंक यू सर. सो शंकर सर, मैं कंटिन्यू कर लूंगा क्लास को. अगर आपको कोई दूसरा शेड्यूल है तो आप जा सकते हैं. सो स्टूडेंट, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस, ओके. सो आज का टॉपिक हम बेसिकली जो जनरल मैथमेटिक्स जो होता है, जो कि जनरल मैथमेटिक्स जो आप क्लास 10th के बिलो पढ़ते होंगे, फॉर एग्जांपल तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इसे बोलते हैं. तो हम इसके जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, हम आज इससे स्टार्ट करेंगे. ओके, तो जैसे कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि जनरल मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं, मैं उनका नाम बोल देता हूं. तो जैसे कि आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से. ओके, मींस नंबर सिस्टम जिसमें आएंगे नंबर का क्लासिफिकेशंस. ओके, फिर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर एंड एचसीएफ एंड एलसीएम, जो कि काफी बेसिक्स है, आई थिंक क्लास 5-6 के स्टैंडर्ड के. ओके, बट इससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसके कंसेप्ट्स आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं, जो कि मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, उसमें आपको कंबाइंड फॉर्म में इसके कॉन्सेप्ट आपको यूज में आएंगे. ओके, सो बेसिकली जनरल, so I'm going to present the screen. So it is presenting now. So आज का जो टॉपिक है वो हमारा नंबर सिस्टम है. तो इसके अलावा और आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, जो ये पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम. तो चूंकि यह बेसिक्स टॉपिक है तो इसके अलावा भी हम टॉपिक्स को सिलेक्ट कर सकते थे, बट हम अगर एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें मैथमेटिक्स का जो सब सारे टॉपिक्स हैं ये समझने में काफी आसानी होगी. जैसे कि इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन, फिर एवरेज, एवरेज के बाद एलिगेशन, जिसमें मिक्सचर्स के क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जांपल 10 लीटर मिल्क में 5 लीटर
वाटर को ऐड कर दिया गया है। ओके, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके, तो टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये दोनों टॉपिक से काफी क्वेश्चंस हर एक साल आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो प्रत्येक साल इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, तो ये प्रॉफिट लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चंस आएगा। ओके, फिर इसके बाद कुछ ज्योमेट्री के टॉपिक हैं, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, जैसे एरिया, पेरीमीटर, ये सब वाले, सर्कल। ओके, देन आफ्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लास्ट वन इज अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हम देखेंगे फंक्शंस, इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी लोगों ने देखे होंगे, एंड वन लास्ट इज लॉगरिथम। ओके, सो ये हमने देखा कि जनरल मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं बेसिकली। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है यह हमारा है नंबर सिस्टम, मींस जितने भी नंबर्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो हाँ, अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक मिनट, सॉरी, अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक, मीन्स हमारे जितने भी नंबर्स हैं। ओके, मीन्स नंबर लाइन जिसे कहते हैं, नंबर लाइन में ड्राइंग करके आपको बताऊंगा, जितने भी नंबर को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। ओके, उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। ओके, उसके बाद रियल नंबर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट वन इज इंटीजर एंड सेकेंड वन इज डेसिमल। ओके, जो फ्रैक्शन वाले मीन्स जो डेसिमल वाले पार्ट होते हैं पॉइंट में, वो हो गए डेसिमल, और जो जो कंप्लीट होते हैं वो इंटीजर, जैसे -1, 0, 1, 2। ओके, दिस इज कॉल्ड इंटीजर, एंड इंटीजर इज डिवाइडेड इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसके आगे हम पढ़ेंगे रेशनल एंड इरेशनल, एंड इसी तरह डेसिमल जो है उसे निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो। तो यहां से मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो। ओके, सो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मींस क्या, अगर हम नंबर लाइन लेते हैं, इफ यू टेक नंबर लाइन, ओके, देन जीरो के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 के बाद, वो सारे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ओके, पॉजिटिव नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट वन इज यूनिटी, यूनिटी इज वन। ओके, सेकेंड वन इज प्राइम नंबर एंड थर्ड वन इज कंपोजिट नंबर। ओके, तो पहला हो गया यूनिटी मीन्स वन, सेकेंड इज प्राइम नंबर एंड थर्ड वन इज कंपोजिट नंबर। अब हम यह देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है एंड यूनिटी क्या होता है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन पे कैसे डिवाइड किया गया है सारे नंबर्स को, वो हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ेंगे। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ओके, एंड प्राइम नंबर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, फिर कंपोजिट नंबर, देन को प्राइम नंबर के बारे में देखेंगे। ओके, तो मैं ड्राइंग बोर्ड पे चलता हूं, इट इज लोडिंग नाउ। सो लेट अस सपोज ये मैंने एक नंबर लाइन लिया। ओके, नंबर लाइन क्या हो गया, जिसपे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मिडल में मैंने क्या दिया, 0। ओके, 0, राइट साइड में 1, देन आफ्टर 2, और ये चला गया ये प्लस इंफिनिटी तक। ओके, एंड इसी तरह ये लेफ्ट साइड में -1, फिर -2, एंड ये क्या, ये चला जाता है फिर माइनस इंफिनिटी तक, मीन्स -3, -4 एंड सो ऑन। ओके, तो
तो ये क्या हो गया हमारा नंबर लाइन, ये क्या हो गया हमारा नंबर लाइन, जो कि अभी हम पिछले स्लाइड में देखे थे। तो जितने भी हम नंबर्स को हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर, उसे क्या बोलेंगे, रियल नंबर। ओके, तो जैसे यहाँ पे हम फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल 0.5 को यहाँ 0 और 1 का जो हाफ पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ओके, तो मेरा अभी यह पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि हम यह देखेंगे नेचुरल नंबर मींस प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड यूनिटी। ओके, तो ये 0 के बाद ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, ओके, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो पॉजिटिव इंटीजर में जो ये 0 है ये क्या हो गया, ये यूनिटी, ये 1 क्या हो गया, ये 1 को मैंने बोला यूनिटी मींस ए, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर को मैंने बोला नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसे मैंने बोला यूनिटी, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ओके, तो हम देखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, फिर उसके बाद ये भी देखेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर। ओके, तो एक सिंपल सा ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर का, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, डेसिमल एंड इंटीजर में। ये मैंने पिछले वाले में दिखाया था, वो इससे ज्यादा बेटर। आगे नेचुरल नंबर पे, तो यहाँ पे नेचुरल, ये मैं अभी काफी बेसिक्स बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि यह नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। ओके, तो आपको मे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ पे जाएंगे, तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। ओके, तो यह है नेचुरल नंबर। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नेचुरल नंबर, जिसे हम यूज फॉर काउंटिंग मींस 1 2 3 4, ये जितने भी नंबर हुए एक्सेप्ट 0। ओके, एक्सेप्ट 0 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या हो गया, काउंटिंग नंबर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। ओके, मींस 0 से जो स्टार्ट होगा वो हो गया होल नंबर, और ये हो गया नेचुरल नंबर। ओके, देन आफ्टर मैंने देखा था कि नेचुरल नंबर जिसे हम पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं, उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज यूनिटी, सेकंड वन इज प्राइम नंबर एंड थर्ड वन इज कंपोजिट नंबर। तो मैं यहाँ पे प्राइम नंबर, आपके सामने प्राइम नंबर दिख रहा है। ओके, तो बाय डिफिनीशन प्राइम नंबर उसे कहा जाता है मींस अ नेचुरल नंबर लार्जर देन यूनिटी इफ इट डज नॉट हैव अदर डिविजन एक्सेप्ट फॉर इटसेल्फ एंड यूनिटी। मींस सबसे पहला यहाँ पॉइंट नोट करने वाला है कि वो नेचुरल नंबर रहना चाहिए। ओके, मींस आपसे अगर कोई प्राइम नंबर का डिफिनीशन भी पूछे, आपसे अगर प्राइम नंबर का डिफिनीशन भी पूछे तो आप मींस उसमें नेचुरल नंबर ऐड करना नहीं भूलिएगा। ओके, मींस अ नेचुरल नंबर लार्जर देन यूनिटी। अगर आप जैसे नेचुरल नंबर ऐड नहीं करोगे तो वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो सकता है। मींस आपसे क्रॉस क्वेश्चन करके बोल सकता है कि -2 इज अ प्राइम और नॉट। ओके, सो यहाँ पे जो ये नेचुरल नंबर ये डेफिनेशन में है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ओके, तो वैसा नेचुरल नंबर जो सिर्फ मींस वन एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो जाए, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। ओके, तो 2 किससे डिविजिबल है, 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 2। 3 किससे डिविजिबल है, ओनली 1 एंड 3। इसी तरह 5 एंड 7। फॉर एग्जांपल 8 लिया मैंने। ओके, तो 8 का कितना हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा और 8 भी हो जाएगा एंड 1 भी है। ओके, तो यहाँ पे बट ये क्या है, प्राइम नंबर ये नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका डिविजर
1 8 के अलावा 2 4 भी है। ओके, तो ये हमारा प्राइम नंबर का डिफिनीशन हुआ। तो हम प्राइम नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, यहां आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला है कि द लोएस्ट प्राइम नंबर इज 2। ओके, 2 क्या है? सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इवन प्राइम नंबर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इवन प्राइम नंबर इन चैट बॉक्स। 2, वेरी गुड। 2 ही सिर्फ एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो कि क्या है, मीन्स 2 एक ऐसा इवन है जो कि प्राइम नंबर है। वेरी गुड। एंड the lowest odd prime number is 3। okay, odd prime number is 3। 2 के बाद जितने भी इवन नंबर हैं उसमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, मैं इसके ड्राइंग बोर्ड पे डिस्कस करूंगा। पी स्क्वायर माइनस, यस। तो एक 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके आप देख सकते हैं कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं। ओके, मैं ड्राइंग बोर्ड पे चलता हूं। सॉरी, ये मैं डिस्कस कर रहा था 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो आप लोग यह याद रख सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे करके दिया गया है। ओके, फिर यहाँ पे 4 प्राइम नंबर, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। जो प्राइम नंबर 3 से ग्रेटर होगा, ओके, तो पी स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 24। ये पहला कॉन्सेप्ट है। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट, तो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जो कि शायद, हाँ, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन 1 and 50। 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं। यह क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2018। How many prime numbers are there between 1 and 50? कुछ आंसर्स आ रहे हैं। 15 15 15, वेरी गुड। तो आपने, हाँ, लगभग 1 मिनट से पहले ही सभी लोगों ने जवाब दे दिया। देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50। ओके, तो एक से, सर डू वी हैव टू फाइंड इट मैनुअली और देयर इज ए फॉर्मूला? इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि प्राइम नंबर को कैसे फाइंड किया जाएगा। ओके, वैसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बट कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। और जैसे कि 1 से 1 से 100 तक बेसिकली प्राइम नंबर्स का जो क्वेश्चंस होता है वह इनिशियली 1 से 100, हार्डली 200 300 इतने रेंज में पूछा जाता है। ओके, तो जैसे 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर रहते हैं, तो ये आप बेसिकली मीन्स याद करके ही रख लोगे। ओके, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि 1 से 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। 25 से मैं लिख ही देता हूं।
1 से 25, 1 से 25 के बीच में टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर इज 9, 25 से 50 के बीच में टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर इज 6, ओके, एंड 50 to 100 total prime number is 10, and the sum of all these is 25. मीन्स 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से 25 के बीच में 9 प्राइम नंबर हैं, मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर इज 9। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 25 टू मीन्स 26 टू 50 इज 6, एंड इसी तरह 51 to 100 इज 10, ओके। तो जो अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछा था वह क्वेश्चन क्या था, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 9 + 6 इज इक्वल टू 15। तो सभी लोगों ने, आप लोगों का आंसर था देयर आर 15 प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50। तो इसे आप इंटरप्रेट करके आप याद रख सकते हो कि 1 से 25 के बीच में 9 प्राइम नंबर है, 26 से 50 के बीच में 6 प्राइम नंबर है, 51 to 100 10 प्राइम नंबर है। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 इज 25, ओके। सॉरी। तो इसके बाद आपने पूछा कि प्राइम नंबर को हम कैसे पता कर सकते हैं कि वेदर अ गिवन प्राइम नंबर इज प्राइम और नॉट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 239 इज अ प्राइम और नॉट। आपके सामने 239 एक नंबर दिख रहा है, ओके। तो 239 प्राइम नंबर है या नहीं है, ओके। तो पहले मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं। यस, आपने यस बोला, तो मैं एक बता देता हूं, फिर उसके बाद आपसे 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो जैसे आपको कुछ इस तरह का नंबर दिया रहेगा, ओके, जैसे 1 से 100 दिया रहेगा तो आप आसानी से मैनुअली भी फाइंड कर सकते हैं कि वेदर इट विल बी प्राइम नंबर और नॉट, ओके। तो आपके सामने 239 दिया है, ओके। तो जब भी आपको कोई भी नंबर दिया रहे और यस इट इज प्राइम, वेरी गुड, हाँ, कोई भी नंबर आपको दिया रहे और पूछे कि यह प्राइम है या नहीं है, ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसे, जो नंबर पूछा जा रहा है आपसे, उसे आप रूट के अंदर में डाल दोगे, ओके। तो मेरे से क्या पूछा गया, 239, तो मैंने 239 को क्या रूट में डाल दिया, ओके। तो 239 को मैंने रूट में डाल दिया, बट 239 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। सो आपको इसका मीन्स एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये पॉइंट में आएगा। बट मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यह है कि आप जैसे 239, तो यह किसके स्क्वायर और किसके स्क्वायर के बीच में है, मीन्स मेरे कहने का मतलब 15 स्क्वायर ऑफ 15 इज एंड 16 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर एंड 16 का स्क्वायर क्या होगा, यस 15 एंड 16, वेरी गुड, 15 एंड 16। तो 15 का क्या हो जाता है 225, ओके, एंड 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, वेरी गुड। आपने चैट बॉक्स में लिखा है 256, ओके। तो आपने बोला कि रूट अंडर 239 ये 15 और 16 के बीच में ये लाई करेगा, ओके, 15 और 16 के बीच में ये लाई करेगा, ओके। तो आप सिंपली क्या करोगे, 15, तो यहाँ पे ये 15 क्या स्मॉलर नंबर है, ओके। तो मैं दूसरे
दूसरे पेज पे चलता हूँ। 239 को मैंने क्या किया, यह फाइंड किया कि वह किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। सबसे पहले रूट डाल दिया तो मैंने देखा कि 15 एंड 16 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो 15 इज द स्मॉलर वन। ओके, तो 15 से पहले कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 15 से पहले कौन कौन से प्राइम नंबर है मैं लिख देता हूं। 2 is the smallest, 2 is the even prime number, then after 3 is the first odd prime number, 2 3 4, 4 नहीं होगा, 5, then after 7, then after 11 and 13। ओके, तो ये जितने भी हैं ये हमारे क्या हो गए, 15 से पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं ये उसका ये लिस्ट है। ओके, 15 से पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं उसका ये लिस्ट है। ओके, हाँ, 2 3 5 7 11 13। हाँ, आपने चैट बॉक्स में बोला, वेरी गुड। तो सिंपली करना ये है कि ये मेरा नंबर क्या था, 239। ओके, तो सिंपली यह देखना है कि 239 ये जितने भी नंबर है किसी भी नंबर से 239 इज नॉट डिविजिबल। ओके, 239 इज नॉट डिविजिबल बाय आइदर ऑफ दिस प्राइम नंबर। इसमें से जितने भी प्राइम नंबर हैं उसमें से किसी से भी 239 डिविजिबल नहीं है। 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं डिविजिबल है। ओके, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है। ओके, सो 239 इज अ प्राइम नंबर। ओके, सो 239 इज अ प्राइम नंबर। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि कैसे हम चेक करेंगे कि वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। मैंने सिंपली क्या किया, मेरे सामने 239 दिया हुआ था। ओके, तो 239 को मैंने क्या किया, 239 को मैंने फाइंड किया कि यह 15 एंड 16 के बीच में इसका स्क्वायर रूट लाई करेगा। ओके, तो 15 इज द स्मॉलर वन। ओके, तो 15 से पहले जितने भी प्राइम नंबर थे उसको मैंने सॉर्ट आउट कर लिया। 15 से पहले प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13। ओके, और उसके बाद ये जितने प्राइम नंबर थे उसे मैंने चेक किया कि 239 इज डिविजिबल बाय दिस वन दिस वन दिस वन और नॉट। सो हमने फाइंड किया कि 239 इन ये जितने भी प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7 11 एंड 13, तो इसमें से किसी से भी 239 डिविजिबल नहीं है। ओके, तो इस सब में से किसी से डिविजिबल नहीं है, तो 239 सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल है। ओके, सो 239 इज अ प्राइम नंबर। सो आपने टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, जो कि मैंने अभी बताया, आप समझ पाए क्या? मैंने अभी जो डिस्कस किया कि प्राइम नंबर को कैसे चेक करेंगे, आप समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन किया, इसके बाद आप एक क्वेश्चन करें कि वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो मैंने दिया 163, फाइंड 163 इज प्राइम और नॉट, प्राइम है या नहीं है। फाइंड 163 वेदर इट इज प्राइम और नॉट। इट इज 9:29। आपको 1 मिनट का मैं टाइम दिया हूं। ओके, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। वेरी गुड, यह प्राइम नंबर नहीं है। गुड, नो, वेरी गुड, नो। हाँ, सभी लोगों ने बोला कि 163 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, तो इसे मैं अगर देख लूं तो जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि प्राइम नंबर को कैसे फाइंड किया जाएगा, अगर हम उस पर देख लें तो 163 लाइज बिटवीन 12 का स्क्वायर 144 एंड 13 स्क्वायर इज 169। ओके, तो हाँ, तो 12 स्क्वायर इज
144 and 13 स्क्वायर इज 169. ओके, मीन सबसे पहले मैंने क्या किया, 163 को रूट के अंदर में डाल दिया. ओके, फिर इसके बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इसका जो स्क्वायर रूट है ये 12 एंड 13 के बीच में लाई कर रहा है. ओके, तो आप सिंपली क्या करोगे, 12 से पहले जो भी प्राइम नंबर है उसे आप लिख दोगे. तो 12 से पहले कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, तो 2, 3, 5, 7 एंड 11. तो 163 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 163 के लास्ट में 2 या 4, 2, 4, 6, 8 नहीं है. 3 से भी डिविजिबल नहीं है. ओके, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है, एंड 11 से भी डिविजिबल नहीं है. ओके, सो 163 इज अ प्राइम. आपने क्या बोला, प्राइम नंबर है या नहीं है? 163 इज प्राइम नंबर है या नहीं है? 163 163, तो 163 तो प्राइम नंबर होगा ना. इट्स प्राइम, यस, क्योंकि हमने क्या चेक किया, हाँ, ये मैंने क्या किया, सिंपली हमारा क्या प्रोसेस है, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा, नंबर को आप सबसे पहले मैं अंडो करके आपको दिखा देता हूं. मेरे आपसे पूछा गया कि 163 इज वेदर प्राइम और नॉट. ओके, तो आपने सबसे पहले क्या किया, 163 को रूट के अंदर में डाल दिया. ओके, तो 163 लाइज बिटवीन 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर. 12 एंड 13 आप आई थिंक सभी लोगों को 1 से 20 का स्क्वायर रिमेंबर होगा. ओके, मीन्स 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर. ओके, तो आप लोग आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 163 12 स्क्वायर एंड 33 का स्क्वायर रूट के बीच में लाई करता है. ओके, तो ये सबसे पहले रूट दे दिया, फिर ये फाइंड किया. तो सबसे पहला वाला नंबर क्या है, 12 और 13 में 12 है. ओके, तो 12 को मैं अलग कर लूंगा, और 12 से पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं, 12 से पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं उसे मैं लिख दूंगा. तो 12 से पहले कितने प्राइम नंबर है, ये तो आसानी से लिख सकता है कोई भी. अनेबल टू गेट यू, मैं ये प्राइम नंबर, मेरी आवाज नहीं आ रही है या मैं जो बता रहा हूं वो आप नहीं समझ पा रहे हैं? ओके ओके, वो नहीं समझा. ओके, नो प्रॉब्लम. मैं सॉरी, एक बार मैं और फिर से ब्रीफ कर देता हूं. ओके, आपसे पूछा गया कि 163 इज प्राइम नंबर और नॉट. 163 आपको एक नंबर दे दिया गया है और पूछ रहा है कि ये प्राइम होगा या प्राइम नंबर नहीं होगा. तो प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं? प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो या तो एक से डिविजिबल होगा या खुद से. मीन्स अगर 163 प्राइम नंबर होगा तो आइदर या 1 से डिविजिबल होगा एंड 163 से. ओके, जैसे 8 है तो 8 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है. ओके, तो यह प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर 1 एंड इटसेल्फ इससे डिविजिबल होता है. तो आपसे सिंपली एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि अगर जैसे आप पिछले ड्राइंग में मैंने बताया था कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं. तो ये आप बेसिकली याद भी कर सकते हो. ओके, बट 200, 300, 400, ओके, मीन्स कोई नंबर जो कि 300 या 400 के बीच में है, कोई ऐसा नंबर जो 200 एंड 300 के बीच में है. ओके, या मोर देन 100 है.
तो आप कैसे देखोगे कि वह प्राइम नंबर नहीं है? ओके, तो बेसिकली मैनुअली करना होगा, तो ढेर सारे नंबर से आपको चेक करना होगा कि ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट प्रोसेस डिस्कस किया कि कैसे चेक कर सकते हैं कि वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो पहला क्वेश्चन मैंने 239 पे डिस्कस किया एंड सेकेंड क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रहा हूँ 163 पे। तो मैंने आपसे पूछा 163 इज प्राइम और नॉट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी नंबर आपसे पूछा जा रहा है उसे आप रूट के अंदर में डाल दोगे, मीन्स स्क्वायर रूट। ओके, जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। हाँ, इट्स अ प्राइम नंबर, वेरी गुड। ओके, आई थिंक आप समझ गए हैं। मैं फिर भी 1 मिनट में मैं कर देता हूँ ब्रीफिंग। तो जो भी नंबर है उसे आप क्या करोगे, रूट में डाल दोगे। तो 163 ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप यह ऑब्जर्व कर रहे होगे कि 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर। ओके, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 144 एंड 13 का स्क्वायर इज 169। ओके, तो इट लाइज बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहला वाला 12 एंड 13 में छोटा क्या है? 12 है, तो आप 12 को यहाँ लिख दोगे। ओके, और 12 से पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं उसे आप लिख लोगे। ओके, तो 12 से पहले कौन कौन प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 7, 11। ओके, तो ये जितने भी प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, ये 163, कोई भी नंबर 163 से डिविजिबल नहीं है। मीन्स 2 से अगर 163 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली नहीं होगा, इसी तरह 3 से भी करेंगे तो कंप्लीटली नहीं होगा। ओके, 2 मीन्स डिविजिबिलिटी का जो लॉ होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। ओके, तो सो 163 इज अ प्राइम नंबर। ओके, सो 163 इज अ प्राइम नंबर। तो ये एक प्रोसेस था कि ये फाइंड करने का प्राइम नंबर कौन से होते हैं और प्राइम नंबर। तो आई थिंक आप लोग प्राइम नंबर किसे कहते हैं, मींस प्राइम नंबर फाइंड करने का ये आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन और दूं या नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करूं मैं, या सिंपली आप लोग एक बता दो कि 191 इज प्राइम नंबर और नॉट? 191 is prime or not? Yes, prime. Okay. So हम हाँ, तो 191 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। यस, वेरी गुड। सिंपली आप क्या करोगे, इसे रूट के अंदर में डाल दोगे, तो आप यह फाइंड करोगे कि यह 14 एंड 15 के स्क्वायर रूट के मिडल में आता है। तो 14 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है, 2 है, 7 है। ओके, तो 14 से पहले है मीन्स जितने भी प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7 जो भी है। ओके, तो इससे यह 191 डिविजिबल नहीं होता है, सो इट इज अ प्राइम नंबर। सो आई थिंक प्राइम नंबर के ये जो प्रोसेस है आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग घर पे भी कुछ नंबर का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको इसका जो मैकेनिज्म है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगर एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर कोई भी प्राइम नंबर, ओके, कोई भी प्राइम नंबर जो कि 5 या 5 से इक्वल है और 5 से ग्रेटर है। ओके, कोई भी प्राइम नंबर जो कि दैट इज इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5। ओके, अगर हम उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे,
अगर उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 एंड 5 आएगा। कोई भी प्राइम नंबर जो कि 5 या 5 से ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, अगर उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। ओके, हाँ ना, वेरी गुड। हाँ, कोई भी प्राइम नंबर विच इज इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5 एंड डिवाइडेड बाय 6, देन रिमाइंडर विल बी 1 और 5। इसे हम चेक करके भी देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, 7 इज ग्रेटर देन 5, 11। ओके, 7, 11 एंड 13। तो मैंने क्या बोला, 7, 11 एंड 13 ये क्या है, तीनों प्राइम नंबर है एंड 5 से ग्रेटर है। ओके, तो सभी को मैंने 6 से डिवाइड किया। इस सेकेंड वाले को भी 6 से डिवाइड किया, इसे भी 6 से डिवाइड किया। तो आप लोग बताएं कि पहले वाले में क्या रिमाइंडर आएगा, सेकेंड वाले में क्या रिमाइंडर आएगा एंड थर्ड वाले में क्या रिमाइंडर बचेगा। आप लोग चैट बॉक्स में बताएं। 7 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हाँ 1, 5, 1। तो जैसा कि आपने चैट बॉक्स में बताया, पहले वाले में 1, सेकेंड वाले में 5 एंड थर्ड वाले में 1। ओके, सो इट इज 941। सो आई एम गोइंग टू, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। प्राइम नंबर हमारा हो गया। अब हम चलते हैं HCF एंड LCM पे। ओके, और HCF एंड LCM पे चलते हैं और उसी में हम प्राइम नंबर और को प्राइम इन सब के बारे में हम देखेंगे। ओके, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट ये बस एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अगर इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी नंबर जो कि 5 से ग्रेटर है तो ऐसा होगा। ये सिर्फ प्राइम नंबर जो कि 5 या 5 से ग्रेटर देन है, अगर उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 5 आएगा। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तब हम प्राइम नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, प्राइम नंबर, फिर हाँ 151, यस। तो इसके बाद हम LCM एंड HCF के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको देखेंगे। ओके, तो LCM एंड HCF, तो ये बेसिकली काफी लोअर क्लासेस के हैं। ये क्वेश्चन आपने किया था, टू चेक वेदर अ नंबर प्राइम और नॉट, 239। देन आफ्टर LCM एंड HCF, तो हम बेसिकली LCM एंड HCF के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM सॉरी, हमारा टॉपिक है LCM एंड HCF। ओके, तो मल्टीपल किसे कहते हैं, जैसे आपने बचपन में 2 का टेबल्स याद किए होंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड सो ऑन। ओके, तो 4 6 2 ये क्या है, 2 का मल्टीपल है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे 8 है, 16 एंड 24, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 16 एंड 24 आर द मल्टीपल्स ऑफ 8। ओके, so what is LCM, एक मिनट, हाँ, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM कहाँ पे होता है, बेसिकली जब फॉर एग्जांपल 2 नंबर आपको दिया हुआ है, फर्स्ट
one is 8 and second one is 12. Okay, first one is 8 and second one is 12. तो इसका एलसीएम क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं क्या चैट बॉक्स में? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12? व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12? 24. 2 इज एलसीएम. 24 आपने बोला, 2 नहीं होगा एलसीएम. ओके, एलसीएम क्या होता है? मल्टीपल, मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, वो एचसीएफ हम इसके बाद देखेंगे. फैक्टर एंड मल्टीपल दो चीज होता है, एक फैक्टर एक मल्टीपल. तो अभी हम मल्टीपल पढ़ रहे हैं. ओके, जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि 246 क्या है? 2 का मल्टीपल है. 1624 क्या है? 8 का मल्टीपल है. ओके, तो बेसिकली आप लोग बचपन में एक ऐसा वाला आप लोग देखे होंगे. ओके, 2 से किया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 3. ओके, सो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 8 24. तो ये वाला सबसे कॉमन प्रोसेस जो है, ये आपने छोटे क्लास में ये देखा होगा कि कैसे हम एलसीएम निकालते हैं. और इसका दूसरा जो मल्टीपल अभी हमने जो देखा था, मल्टीपल के कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे. तो 8 का मल्टीपल क्या है? 2 2 जा 4, 2 जा 8. ओके, एंड 12, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12. ओके, तो 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं इसे, और इसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1. ओके, तो यहाँ पे क्या है? 2 एंड 3 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है. ओके, तो सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर इज 2. ओके, तो दोनों केस में 2 के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ पे है? तो पहले वाले केस में क्या है? 2 इंटू 3. ओके, एंड पहले वाले में 3 नहीं है एंड सेकेंड वाले में 3 है, तो 3 सिंपली हम ले लेंगे 3 टू द पावर 1. ओके, तो 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 एंड 3 टू द पावर 1 3 इज इक्वल टू 24. ये क्या हो गया? ये हम फैक्टर निकाल करके हम एलसीएम निकालते हैं. ये तरीका हो गया एलसीएम निकालने का. अब वैसे बेसिकली ये काफी आसान तरीका है, इससे आप हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो इसी प्रोसेस से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो. ओके, एचसीएफ भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं. वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस प्रोसेस से एचसीएफ निकाल सकते हैं. तो ये हो गया एलसीएम का. मैं अब एचसीएफ बता देता हूं. ओके, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद को प्राइम, फिर और एचसीएफ एलसीएम को और डिटेल्स में देखेंगे. ओके, तो जैसा कि हमने एलसीएम देखा था, तो एलसीएम क्या था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, मीन्स अगर 8 और 12 का एलसीएम 24 आया तो 24 पहला नंबर है. ओके, कि अगर 8 का आप टेबल पढ़ोगे तो 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24. तो 24 इज द लीस्ट, मीन सबसे पहला आता है कि जो कि 8 से डिविजिबल है एंड 12 से भी डिविजिबल है. ओके, मीन्स 12 2 जा 24 एंड 8 3 जा 24. सो एलसीएम ये होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर जो कि सबसे कम हो, लीस्ट. ओके, so then after HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो सिंपली जैसे 12 और 8 का हम डिस्कस कर रहे थे, तो 12 और 8 ही हम देखते हैं. तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? मीन्स 12 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? तो 1 से है, 2 से है, 3 4 जा 12,
4 3 जा 12, 6 एंड 12 एंड 8 किससे, सॉरी 18 मान 18 ले लिया। ओके, तो 18 क्या है, 1 से है, 2 से है, 3 6 जा 6, 9 एंड 18। तो आप लोग चैट बॉक्स में ये बताएं कि 12 एंड 18 का HCF क्या होगा। व्हाट विल बी द HCF ऑफ 12 एंड 18? व्हाट विल बी HCF ऑफ 12 एंड 18? 3 12 एंड 18 का सबसे 3, वेरी गुड, 3 हो जाएगा। ओके, एक मिनट, हाँ सभी लोगों ने 12 एंड 18 का HCF के बारे में बताया कि 12 the HCF of 12 and 18 will be 3। ओके ओके ओके, यस। सो अभी हमने देखा था कि क्या LCM होता है और क्या HCF किसे कहते हैं और LCM किसे कहते हैं। ओके, तो एक हम एक HCF अभी 9:51 हो रहे हैं, तो मैंने इससे पहले क्या देखा था, 8 और 12 का LCM, 8 और 12 का LCM क्या हो गया, 24। ओके, ये क्या हो गया LCM। आप 8 और 12 का HCF बताएं तो व्हाट इज द HCF ऑफ 8 एंड 12? 8 और 12 का HCF क्या होगा, जैसे आपने अभी बताया था कि 1, नो 1 नहीं होगा, फोर, वेरी गुड, 4। द HCF of 8 and 12 will be 4। ओके, 4 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 एंड 12 का ये देख ही लेते हैं, आपको लगता है 8, हाँ 4। अब सारे लोगों का आंसर 4 आ गया। आई थिंक आप लोग समझ गए। ओके, तो ये हमारा क्या था, नंबर था। ओके, ये हमारा क्या था, नंबर था। तो 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96। ओके, एंड ये LCM क्या है, 24 एंड HCF 4 है। ओके, तो LCM क्या था, 24 एंड HCF क्या था, 4। तो 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 96। ओके, तो ये क्या है, ये जो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96 आया, मीन्स ये द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, एंड 24 इंटू 4 ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो एक हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मीन्स हमारा जो नंबर दिया रहेगा वो उसका मल्टीप्लीकेशन और LCM और HCF का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा। ये आप लोग क्रॉस चेक यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे पास दो नंबर्स दिया गया था, पहला नंबर था 12 और 8, और इसका क्या था, 12 और 8 का LCM 24 आया एंड HCF 4 आया। तो 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 96 एंड 8 एंड 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 96 आएगा। ओके, तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए HCF नहीं दिया हो, LCM दिया हुआ हो और ये दो नंबर दिया हुआ हो, ओके, तो आप HCF आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे LCM मालूम था एंड दो नंबर्स मालूम था, तो आपने चैट बॉक्स में HCF कोई 2 बोले थे, कोई 1 बोले, तो मैंने सिंपली क्या किया, चेक कर लिया
24 इंटू 4 इज इक्वल टू 96 में, मीन्स ये वाले फॉर्मूले से मैंने चेक कर लिया था कि इसका HCF 4 होगा। ओके, सो इट इज 955। तो मैं HCF एंड LCM पे एक छोटा सा क्वेश्चंस करता हूं जो कि पिछले साल पूछे गए थे। इट इज 955। ओके, फिर इसके बाद हम देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो फिर फ्रैक्शंस का LCM एंड HCF कैसे निकाला जाता है। ओके, देन आफ्टर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इट इज 955, आपको 3 मिनट का टाइम है। 958 तक आप सॉल्व करें। मैं क्वेश्चन को ब्रीफ कर देता हूँ। हाँ, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल होगा। क्वेश्चन को मैं डिक्टेट कर देता हूँ। यह क्वेश्चन UPSC 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। ओके, और ये HCF एंड LCM के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस है, अ बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, a second bell rings every 24 minutes, a third bell rings every 32 minutes. If all the 3 bell rings at the same time at 8 o'clock in the morning, at what other time will they all ring together? मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक बेल है, बेल मीन्स घंटी जो हमारे स्कूल्स में होते हैं, वैसे उसी तरह का ये बेल है। ओके, तो पहला बेल है वो 18 मिनट के इंटरवल पे रिंग करती है, सेकेंड बेल 24 मिनट के इंटरवल पे रिंग करती है, थर्ड बेल 32 मिनट के इंटरवल पे रिंग करती है, एंड फोर्थ हाँ 3 बेल है। ओके, तो ऐसा एक इत्तेफाक आया, एक ऐसा समय आया जो कि 8 o'clock में तीनों बेल एक साथ रिंग की। 8 o'clock मॉर्निंग में तीनों बेल एक साथ रिंग की। ओके, तो आप लोग बताएं कि फिर इसके बाद तीनों बेल एक साथ रिंग कब करेगी। तो तीनों बेल इसके बाद फिर रिंग कब करेगी। क्या आप लोग क्वेश्चन समझ पाए? अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो मैं आपको ये होमवर्क में दे दूंगा, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट इज 957 नाउ। सो आप लोग 1-2 मिनट ट्राई करें, फिर हम देखेंगे। ये क्वेश्चन शायद 1248, very good. 1248 is the right answer. Very good. Option 2, good. ठीक है, तो कुछ लोगों का आंसर 1248 दैट इज ऑप्शन 2 आ गया। तो कैसे आया ये मैं डिस्कस कर देता हूं। हमारे पास 2 मिनट का समय बचा हुआ है। तो ये क्वेश्चन चूंकि पहले यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे गए थे। ऑप्शन 2 1248, हाँ वेरी गुड। तो मैं ब्रीफ में मैं डिस्कस कर देता हूं। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप घर पे ट्राई करना, या नहीं तो अगली क्लास में हम फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बेल, तो हमारे पास 3 बेल थे। ओके, फर्स्ट बेल क्या था 18 मिनट के इंटरवल पे, सेकेंड बेल 24 मिनट के इंटरवल पे, एंड थर्ड वन इज 32। ओके, तो 8 o'clock मॉर्निंग में ये तीनों बेल एक साथ रिंग की। ओके, तो इसके बाद यह मीन्स ये तीनों बेल कब रिंग करेगी। ओके, तो इसके बाद सबसे पहले ये बेल आपस में सब एक साथ कब ये रिंग करेगी। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों नंबर है, इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, क्या होगा, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो उस इंटरवल पे यह तीनों बेल एक साथ रिंग करेगी। तो 18, 24 एंड 32 इसका एलसीएम हम देखते हैं। तो 18, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ओके, तो 2 2 जा 4, 4 2
4 2 जा 8, 3 जा 24, ओके। एंड 32 32 2 into 2 into 2 to the power 5, ओके। दो को 5 बार गुना करेंगे तो वो 32 हो जाएगा। तो 2 पे सबसे हाईएस्ट पावर 2 to the power 5 है, ओके। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दो बार है तो ये क्या हो गया, 3 to the power 2 है, और इसमें 2 है और 3 है, तो यहाँ पे 3 पे पावर 1 है और ये तीनों 2 मिलेगा तो 2 to the power 3 होगा। बट हमारे पास 2 to the power 5 है और यहाँ पे 3 to the power 2 है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 to the power 5 into 3 to the power 2, तो 32 into 3 into 3 9 is equal to 288। 32 into 9 is equal to 288। 32 into 9 मैं चेक कर लेता हूँ, यस 288, 288, ओके। आया 288 हमारा एससीएम आया, ओके। तो 288 क्या आया, ये मिनट है, ये क्या है, मिनट है, ओके। तो इसे हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आवर में, तो ये आ जाएगा आपको 4 आवर 48 मिनट, 4 आवर 48 मिनट। ये आप डिवाइड करोगे तो मीन्स अगर इसको आवर में बदलोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ओके। तो 8 AM सुबह में मेरा बेल रिंग की, ओके, और इसके बाद इतने आवर के बाद रिंग करेगी, तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो 9 10 11 12, तो 12 एंड 48 मिनट, तो 12 आवर 48 मिनट, दैट इज ऑप्शन बी। सो इट इज 10 o'clock 10 to। सो आई थिंक सभी लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ओके। सो सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट स्टॉप द प्रेजेंटेशन। मैंने आपको सिंपल नंबर सिस्टम बताया, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ बताया, ओके। फिर अगले क्लास में इससे आगे के जो टॉपिक होते हैं उस पर हम प्रोसीड करेंगे। सो इट इज 10:02 हो चुके हैं, तो आज के सेशंस को यहीं पे एंड करते हैं। यू कैन लेफ्ट द मीटिंग। थैंक यू, थैंक यू। Thank you all. Bye. Good night.